ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸರ್ವ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ, ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರ ಲೇಷಿಗಾಗಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸರ್ವರು ಕೂಡಿ ಬಾಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದೇ ದೇವಾಲಯ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ತತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕುರುಹು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ, ಅರಿವೇ ಗುರು, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು, ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದವರು, ಉತ್ಪಾದಕ ವರ್ಗದವರು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಕಟ್ಟುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಬಂತಂದರೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ, ಪಂಚಮ ಈ ಥರ ಜನರನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಉತ್ಪಾದಕ ವರ್ಗದವರನ್ನು, ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ದುಡಿಯಲಾರದೆ ಕುಳಿತು ತಿನ್ನುವ ಈ ಜನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಒಂದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ 770 ಜನ ಅಮರಗಣಗಳು, ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ 96,000 ಶರಣರು. ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಠಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಲ್ಲ, ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ದೂರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ತಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಅಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾಯಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿನನಿತ್ಯ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೇವರೆಂದರೇನು, ಧರ್ಮವೆಂದರೇನು, ವಿಚಾರವೆಂದರೇನು, ಆಚಾರವೆಂದರೇನು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರದಿಂದ ಬದುಕಲು ನಮಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು, ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ನಮಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಸರಳ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾದವರು, ಈ ಧರ್ಮದ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಬಡದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿರುಚುವುದಾಗಲಿ, ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದಾಗಲಿ, ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 1-2-3 ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತ ಆತ್ಮ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ವಚನ: ನೀರ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವರಯ್ಯ, ಮರನ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಯ್ಯ, ಈ ಬತ್ತುವ ಜಲವ, ಈ ಒಣಗುವ ಮರವನ್ನೇ ಮೆಚ್ಚಿದವರು ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತ ಬಲ್ಲರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. यही हो रहा है आज भी. देश के जो बड़े लीडर होते हैं ना, समाज के भलाई के वास्ते बात करने वाले, उन्होंने खुद बसवण्णा जी का नाम लेकर उल्टा पल्टा करने का कोशिश कर रहा है. वो दिल में एक अलग है और बाहर बोलना एक अलग है, ऐसा मालूम हो रहा है हमारे को. पानी में गंगा नदी के अंदर डुबाने का जो प्रयास किया मनुवादियों ने, लाखों करोड़ों लोग जग गए और बहुत सारे लोग मारे गए और पैसे वेस्ट खर्च करके आए. ये 900 साल पहले बसवण्णा जी ऐसे विचारों को छुड़ाया ना. पानी में डुबकी मारने से पाप परिहार होता है, झाड़ को धागा लपटने से अपने मर्द को भलाई चाहते हैं. ऐसे बहुत सारे अंधा रूढ़ी का जो विचारों के साथ लोगों को गुलाम बनाने का कोशिश कर रहा है एक मनुवादी विचारधारे के लोग. तो इसीलिए ಇನ್ನೊಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ: ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು, ನಾನೇನ ಮಾಡುವೆ ಬಡವನಯ್ಯ, ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ, ಎನ್ನ ಈ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ, ಎನ್ನ ಶಿರವೇ ಅನ್ನದ ಕಳಸವಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನೀ ಕೇಳಯ್ಯ, ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಳಿವು ಉಂಟು, ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಅಳಿವು ಇಲ್ಲ.
इस वचन का भावार्थ क्या होता है? धनवान लोग मंदिर बना सकते हैं, लेकिन मैं गरीब हूँ, इसलिए मुझे मंदिर बनाना नहीं होता। असली मंदिर क्या है? ये शरीर है। ये इस मंदिर का पिल्लर कहाँ है? मेरा पैर है। हाँ, इस मंदिर का दीवार कहाँ है? ये मेरा शरीर है। सृष्टि का मालिक कहाँ बैठा है? अंदर निराकार है। और इस मंदिर का कलश कौन सा है? ये सर है। इसको सोने का कलश बोले बसवण्णा जी। देखो, हाँ, इसी दिमाग से आज आसमान पर उड़ने वाला विमान, हेलीकॉप्टर और समुद्र पे तैरने वाला एक जहाज, बहुत सारे मशीनें कैसे मालूम कर ले इंसान? इसी दिमाग से ना। तो इसलिए इसको क्या कहा है? इस मंदिर का सोने का कलश बोले हैं। तो इतना बेहतरीन विचार रहते हुए भी आज क्या हो रहा है देश के अंदर? अब भारत के देश के बारे में बड़े बड़े बातें करते हैं। चुनाव इलेक्शन आने के बाद में लोगों को झूठा प्रचार करते हैं। मैं इतना पैसे दूंगा, मैं वो दूंगा, ये दूंगा। हाँ, भिखारी बना रहे लोग सबको, ऐसा मालूम होता है। बसवण्णा जी के पीरियड में आने से पहले पूरे चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, हाँ, दूसरों का जान मारने वाले, प्राणी हिंसा करने वाले, वेश्यावाटिका करने वाले, हाँ, बहुत सारे बुरे लोगों थे। तो बसवण्णा जी अनुभव मंडप स्थापन किया ना, क्या मंदिर स्थापन किया? क्या मंदिर स्थापन किया? क्या बताओ? कम से कम इस किताब के अंदर 2500 वचन है। 100 से ज्यादा शरणों का इतिहास है इसके अंदर। सब पूरा इंसानियत बनो, इंसानियत को जिंदा रखो और एक दूसरे से प्रेम करो। अंदर से बाहर से दिल साफ रख लो। हर एक इंसान काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, ऐसा। तो कर्नाटक के अंदर क्या करे लोगों ने? बसवण्णा जी का फोटो इधर लेफ्ट साइड में डालते और अपने फोटो बाजू में डाल देते। तो बसवण्णा जी को छोटा बनाने जा रहे हैं इन पूरे पाखंडवादियों ने, अंधविश्वास लोगों ने। हाँ, इन लोगों ने देश को बर्बाद करके रखा है, ऐसा मालूम होता है। क्योंकि मैं ये वचन पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में, 26 साल पहले मैं ये जो बाहर के इंसान के हाथों से बनाया मूर्ति को पूरे मैं जो है नहीं तिरस्कार करके फेंक दिया मैं। उसके बाद में क्या कर लिया मैंने? अपना छाती के ऊपर ब्रह्मांड का लांछन इष्ट लिंग बांध लिया मैं, इष्ट लिंग। ये देखो, मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ? ये शरीर पे बांधने के बाद में भगवान को ढूंढना है तो इंसान, जानवर, प्राणी, पक्षियों में ढूंढो, जीवंत इंसानों में ढूंढो, उनके साथ बुरा व्यवहार मत करो। ये सिखाता है ये छाती पे इष्टलिंग का। ये मैं बगैर पिल्लर का मंदिर में हूँ और इसी दुनिया का जो सृष्टि का मालिक है, निराकार है, मेरा अंदर भी है, तुम्हारा अंदर है, सबके अंदर है। ये बताने के बदले में राजकारणी लोग मंदिर के अंदर ठहरकर बसवण्णा जी का विचार को बात करते हैं। ಇನ್ನೊಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಆದಿ ಪುರಾಣ ಅಸುರರಿಗೆ ಮಾರಿ, ವೇದ ಪುರಾಣ ಹೋತಿಂಗೆ ಮಾರಿ, ರಾಮ ಪುರಾಣ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಮಾರಿ, ಭಾರತ ಪುರಾಣ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾರಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. क्या सिखाता है इस वचन? ये रामायण, ये महाभारत, ये औरत धन दौलत के वास्ते लड़े सो कहानी के पर उनके नाम से है एक बड़ेपना बताकर बसवण्णा जी का विचार को हाईजैक करने का कोशिश चल रहा है, हमको मालूम होता है। देखे नहीं, अभी 1 साल 2 साल पहले वचन दर्शन बोल के किताब रिलीज करे वीडियो, उसके ऊपर फोटो कौन सा डाले, उसके अंदर मैं पढ़ के देखा पूरा कचरा पट्टी है, बसवण्णा जी का विचार का विरोध में है। अभी वो कोशिश कर रहा है। समझना चाहिए जो शरणों का, वचनों का चिंतन के जो भी लोग हैं, आप लोग भारत को बचा सकते हैं। जो लोग बसवादी शरणों का विचार का आचरण नहीं करते, उसके बदले में उल्टा पलटा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस विचार को अलग तरीके से पब्लिक के अंदर एक दिमाग में डालने का कोशिश चल रहा है। ये नहीं होना चाहिए। ऐसे करने वाले असली देशद्रोही होते हैं। हाँ, देशद्रोही। तो इस धरती के ऊपर बसवण्णा जी स्थापित अनुभव मंडप के लिंगायत धर्म के बराबर कौन सा भी नहीं है बोलकर मैं इस किताब के साक्षी के ऊपर बात कर रहा हूँ। इनकी बराबर कोई नहीं हो सकता है।
बसवण्णा शरणों ने खेती का काम करने वाले, जानवर रखने वाले, घड़ा बनाने वाले, डोनी चलाने वाले, कपड़ा धोने वाले, मेहनत करने वाले लोगों का धर्म है लिंगायत धर्म, बैठ के खाने वालों का नहीं है। और बसवण्णा जी का झंडा लाल झंडा नहीं हो सकता है, कावीधारी नहीं है। सात्विक विचार, सात्विक आहार, सात्विक चिंतन का एक बहुत सहार है। यह है धर्म है। इस धर्म को सारी दुनिया मानता है, ऐसा विचार है। तो इसीलिए और एक वचन मैं बोलकर अपने विचार को सुना। ಅವಳ ವಚನ ಬೆಲ್ಲದಂತೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವುದು ನಂಜು ಕಂಡಯ್ಯ. ಈ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಕರೆಯವಳು, ಈ ಮನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ನೆನೆಯವಳು. ಈ ಮಾನಸಿ ಗಳ್ಳಿಯ ನಂಬದಿರು ನಂಬದಿರು ಕೂಡಲ संगम देवा। देखे नहीं बाहर देश में जाकर क्या किया बसवण्णा जी का? सब तरफ बसवण्णा जी का नाम बोलते वो करते, लेकिन आचरण का पूरा उल्टा करने जा रहा है। इनका मकसद बसवण्णा जी का विचार को और तोड़कर 12वीं शताब्दी में जो कंडी मंचण्णा लोग है ना, मधुवर्ष का बेटी हरड़े का बेटा का शादी हो गया ना, दोनों एक ही भगवान के मालिक बन कर जो साक्षी के इष्टलिंगधारी होकर विभूति लगा लेकर रुद्राक्ष डाल लेकर शरीर ही मंदिर है समझकर जो जिंदगी कर रहे थे, उनका शादी अनुभव मंडप में हो गया, अल्लम प्रभु जी का नेतृत्व में, बसवण्णा जी का। तो इन कंडी मंचण्णा लोगों ने, ये मनुवादी विदेशी लोगों ने झगड़ा लगाया ना वो जमाने में, राजाओं के जमाने में। अभी क्या कर रहा है? बसवण्णा जी का नाम लेकर बसवण्णा जी का विचार को हाईजैक करने का कोशिश कर रहा है। बसव ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂಥರ ಇದು ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಬಸವಣ್ಣನ ತತ್ವದ ವೈರಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆಚರಣೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ. ಈಗಲ್ಲ, ಅಂದಿನ ಹಿಡಿದು 900 ವರ್ಷಗಳ ಕಳೆದು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಯಾಕಪ್ಪ ಇದು ಪ್ರಚಾರ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿಲ್ಲ? ಇನ್ನೊಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ವಿಭೂತಿ ಹೋಸದವರ, ಶ್ರೀ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸದವರ, ನಿತ್ಯ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ಮಾಡದವರ, ಸದ್ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರದವರ, ಜಂಗಮವೇ ಲಿಂಗವೆಂದು ಅರಿಯದವರ, ನನಗೊಮ್ಮೆಯೂ ತೋರದಿರಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಶರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡುವೆ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ। इस वचन का भावार्थ क्या होता है? जो इंसान पिशाने पे विभूति, काम, क्रोध ये जो है ना बुरे, उसको जलाकर ऐसा राख होता है, इसको विभूति। मैं दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगा। रुद्राक्षी रोज सृष्टि का मालिक को जप करके धन्यवाद बोलने के वास्ते होता है, और इष्टलिंग रोज मेरा भगवान मेरा अंदर है ऐसा समझ के जीने के वास्ते होता है। क्या चल रहा है देश के अंदर? बातें करते बसवण्णा जी का और आचरण पूरा उल्टा करते। यही लोग असली देशद्रोह है बोलकर मैं लास्ट में पूरे मेरे भारत के अंदर रहने वाले बुद्धा, बसवा, अंबेडकर अभिमानियों को मैं हाथ जोड़कर विनंती करता हूँ, जो अंदर से एक अलग बाहर से एक अलग बात करने वालों का शर्मिंदा मत हो जाओ, उनका कोई भी लालच में मत जाओ। और जो लोग जो महापुरुषों का विचार को तोड़ मरोड़ने का काम कर रहे हैं, उन लोगों का बातों में मत आ जाओ बोलकर मैं लास्ट में इतना विनंती करते हुए, ये विचारधारा ऐसा है, सारे भारत को एक दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा भारत, एक ईमानदार भारत, एक सच्चाई का भारत, और यहाँ पर कोई बेरोजगार, कोई गरीबी, कोई बीमारी, कोई जात पात, कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव, ये सारे कचरा निकालने के वास्ते ये दुनिया के अंदर एक ही एक है। मैं बसवा कल्याण की ज़मीन पर आ जाओ, इसके बारे में चिंतन करेंगे। इसका विरोध जो करते हैं उन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं पा सकते हैं, और ऐसे आकर मालिक का सब कुछ लेकर एक दिन ऐसे जाना पड़ेगा। इसलिए जाने से पहले एक अच्छा, एक सच्चा, एक ईमानदार विचारों को जीवन में उतार कर दूसरों को बताते जाओ, और उनकी ज़िंदगी एक सच्चाई ज़िंदगी बनेगा, एक अच्छा भारत बनेगा। हम लोग सारे भारत के लोग एकजुट होकर मिलकर प्यार से प्रेम से जीने को सिखाया है हमारा महात्मा बसवण्णा जी
और हमारे अक्का महादेवी शरणों ने। और अभी भारत के संविधान के निर्माण में हमारे भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का विचार, महात्मा बसवण्णा जी का विचार, ये दोनों नायकों को हम जिंदगी में उतार लो और जो बुरे लोग हैं उनको तिरस्कार कर दो बोलकर मैं हाथ जोड़कर इस किताब के साथ विनंती करते हुए लास्ट में आप सबको अगर दिल में लगा, मन को लगा, तो इस धरती छोड़ के जाने से पहले ये काम करो, आपको अंदर का मालिक कबूल होगा और मुक्ति मिलेगा। हमको मुक्ति पाने के लिए गंगा नदी पानी में डुबकी मारने का ज़रूरत नहीं है, करवा चौथ करने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, और क्या क्या तो करते ये सब लोग। हाँ, ये झूठे प्रचार के बारे में देश बर्बाद हो रहा है। हाँ, इसको पीछे कर पढ़ना छोड़ दो, ये पाखंडवादी लोगों को पीछे पढ़ना छोड़ दो बोलकर मैं लास्ट में विनंती करते हुए कावड़ यात्रा करते उत्तर प्रदेश, वहाँ के पूरे कचरा लाकर हमारा बसवा कल्याण हमारे शरणों के एरिया में फेंक रहे लोगों ने। हाँ, यही लोग असली देश के गद्दार होते हैं, यही लोग असली देश के द्रोही होते हैं। क्योंकि मुझे भी 26 साल पहले मैं वचन की किताब नहीं पढ़ा था। अब वचन की किताब पढ़ने के बाद में इन्होंने कितना देश के साथ गद्दारी कर रहे, लोगों के साथ पूरे झूठा प्रचार कर रहे। तो मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा हूँ। अगर स्वतंत्र भारत देश के अंदर स्वतंत्र से ज़िंदगी करना है, मन से साक्षी रख लेकर ज़िंदगी करना है, तुम्हारा हेल्थ अच्छा रहेगा, तुम्हारा फैमिली अच्छा रहेगा, तुम्हारा गांव अच्छा रहेगा, तुम्हारा तालुका, तुम्हारा जिला, हमारा देश पूरा एक अच्छा भारत बन सकता है। सिर्फ महात्मा बसवण्णा जी का अनुभव मंटप का, शरणों का, वचनों का, लिंगायत धर्म का विचार बोलकर मैं बोल रहा हूँ। और सरल जीवन है, किसी के साथ हाथ फैलाने का जरूरत नहीं है, कोई तीर्थ क्षेत्र जाने का जरूरत नहीं, कोई धर्म स्थल नहीं, कोई चार धाम नहीं, कोई गंगा नदी पानी नहीं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ यहाँ 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 सब कुछ यहाँ है। यहाँ सृष्टि का मालिक के साथ जुड़ जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारे कोई बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, कौन सा भी बीमारी नहीं आ सकता है। सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक आचार के साथ जिंदगी करो। मैं भी वही रास्ते पर चल रहा हूँ बोलकर आप लोगों को मैं हाथ जोड़कर विनंती करता हूँ। भारत देश के अंदर रहने वाले 145 करोड़ जनता को, ये पाखंडवाद राजकारणी लोगों को, ये पाखंडी धर्म के प्रचार करने वाले उन लोगों को पीछे मत जाओ, तुमको कल्याण नहीं होगा। अगर कल्याण होता है तो वचन का किताब पढ़ो, 23 भाषा में मिलता है बोलकर मैं इतना विनंती करते हुए लास्ट में बसवा कल्याण की ज़मीन से, अनुभव मंटप की ज़मीन से और एक बार पूरे मेरे भारतवासियों को मैं सर झुकाकर और एक बार शरण करता हूँ।